Everyone. So today we are going to start the HTML and CSS interview question for beginner friendly basically. So first we will start with the HTML interview question and answer. First question is difference between web page and website. Web page, a single HTML document, one page. Website, a collection of related web pages under one domain. Basically, web page is nothing but you can take an example of Wikipedia's and the website which has the multiple pages or web pages inside a single website. Okay, so example about.html web page and google.com website. Google have so many like about.html files. So that's it. What is the SPA and MPA? SPA concept is comes in React, basically React JS, but here is asked in HTML also, like what is difference or what is SPA and MPA? SPA is a single page applications. Load one page, content update dynamically, React or Angular, as I already said. MPA is multi-page application. Loads a new page for every request. Basically, SPA is a load one page, content update dynamically. Basically, सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपका जो वेबसाइट का जो पेज होता है वो विदाउट रेंडरिंग द होल वेबसाइट इट रेंडर्स जो पर्टिकुलर एलिमेंट जो चेंज हुआ है उसे सिर्फ रेंडर करता है रेदर देन रेंडरिंग द होल वेब पेज। और इसमें एमपीए में क्या होता है मल्टी पेज एप्लीकेशन which is loads the whole website. Anything change, a small change in your website, it will take more time because it runs the whole website basically. Now, third question: what is HTML and meta tag? Basically, HTML is a hypertext markup language used to structure a web page. So, hypertext markup language. So here we can also understand what is hypertext. Hypertext is nothing but text, text inside a link like you can take a एंकर टैग इस पे क्लिक किया तो वो रिडायरेक्ट करता है किसी और वेब पेज पे। तो हाइपर टेक्स्ट इज नथिंग बट टेक्स्ट इनसाइड लिंक। ओके, बेसिकली एक टेक्स्ट के पीछे भी एक लिंक रहता है, क्लिक करने पे वो रिडायरेक्ट करता है। मार्कअप इज नथिंग बट इज योर predefined text. Language is nothing but your medium. Okay, meta tag provides a metadata like SEO, viewport, chart sets. Whenever you write HTML code, so after the normal shortcut key shift one, you will get the HTML structure, basically base structure. Okay, so here over there you can also find the HTML basic structure. So वहाँ पे क्या होता है, आप वहाँ पे मेटा टैग पाओगे जहाँ पे नेम होता है viewport और मेटा टैग इज नथिंग बट इज योर डेटा अबाउट डेटा इज नथिंग बट डेटा इज काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. ओके, सो नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, हाउ टू ऑटोमेटिकली रिफ्रेश अ वेब पेज. वेब पेजेस को ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कैसे कर सकते हैं यूजिंग अ मेटा टैग. मेटा टैग के अंदर आप क्या लगा दोगे, एचटीटीपी इक्विव, जहाँ पे आप लिख दोगे रिफ्रेश, तो एवरी 5 सेकंड में आपका वेबसाइट क्या होगा, रीरेंडर होगा और रिफ्रेश होगा, बेसिकली रिफ्रेश द पेज इन एवरी 5 सेकंड. ओके, now what are the tags and attributes? What are tags and attributes? So tags are HTML element which is para tag, div tag. So many tags are available and predefined tags are in HTML. So image tag. Attributes is nothing but additional or extra information about a tag which is image. Source क्या करता है, basically it's also a attribute. Source is your core attribute. Attribute has also a two type, core attribute and elemental attribute. Source is your basically core attribute. Okay, सो वाई वी यूज सोर्स बिकॉज इमेज का जो भी सोर्स जहाँ से वो इमेज आ रही है तो उसका पाथ देने के लिए वी यूज द सोर्स. सो सोर्स हैज टू टाइप्स लाइक अगेन इट हैज आल्सो टू टाइप लाइक एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ. एब्सोल्यूट पाथ इज नथिंग बट वेब जहाँ से आप ब्राउजर से कोई भी इमेज का एड्रेस कॉपी एड्रेस करके यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट करते हो, तो दैट इज योर एब्सोल्यूट पाथ. बट व्हेन यू सोर्स का पाथ दोगे जैसे कि अपने इंटरनल डायरेक्टरी से किसी भी फाइल से, तो वहाँ पे पाथ जो आता है वो रिलेटिव पाथ होता है. ओके, basically alt tag क्यों यूज किया जाता है, alt tag whenever your image is not able to show on web page, so वहाँ पे alt tag दिखाएगा. लाइक आपने कोई यहाँ पे लेट सपोज आपने लोगो का डाला है, ठीक है, इमेज, बट वो इमेज लोड ही नहीं हुई, तो यहाँ पे आप alt में क्या लिखे रहोगे, लोगो, तो यहाँ पे लोगो शो करके आएगा, लिख के आएगा. दैट मीन्स यूजर समझ जाएगा कि यहाँ पे एक लोगो का इमेज है. ओके, नाउ सिक्स वन, व्हाट इज void element? एलिमेंट विदाउट अ क्लोजिंग टैग. बेसिकली जिस एलिमेंट्स के क्लोजिंग टैग नहीं होते उन्हें void element कहते हैं, लाइक इमेज टैग, br टैग, hr टैग, इनपुट, मेटा. फिर हाउ टू इंसर्ट एन इमेज इंसर्ट करने के लिए बेसिक टैग यूज करते हैं, इमेज टैग, विच वी ऑलरेडी नो, already discussed also. Okay, difference between class and id. So class and id में difference क्या है, class can be reusable but id should be and must be unique. Okay, so id के लिए हम लोग डॉट सेलेक्टर यूज करते हैं इन css, और सॉरी क्लास के लिए हम लोग डॉट सेलेक्टर यूज करते हैं इन css, एंड id में हम लोग हैश यूज करते हैं सेलेक्टर के लिए. कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स, यूज वंस. ओके, ये कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स एंड ये एक ही बार यूज जा सकता है. नाउ नाइन्थ, इनलाइन वर्सेस ब्लॉक एलिमेंट्स. इनलाइन टेक्स्ट ओनली रिक्वायर्ड विड्थ और ब्लॉक क्या करता है, टेक्स्ट अ फुल विड्थ. इसका एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, लेट्स सपोज अभी आपने क्या लिया, इनलाइन, सॉरी इनलाइन एलिमेंट एंड आफ्टर दैट ब्लॉक एलिमेंट. इनलाइन एलिमेंट क्या करता है, बेसिकली
inline element can inline element जो भी होता है वो पर्टिकुलर कंटेंट जो भी होता है वो उतना ही रिक्वायर्ड स्पेस लेता है. कंटेंट एक रिक्वायर स्पेस as as it has space. ओके, मेरी इंग्लिश थोड़ी सही नहीं होगी तो मैनेज कर लेना थोड़ा. ब्लॉक एलिमेंट्स इज नथिंग बट जो कि आपका फुल विड्थ लेता है, लाइक पूरा वेबसाइट का एक फुल विड्थ लेता है, लाइक पैरा टैग, div टैग. अब यहाँ पे मैं एग्जांपल भी लेके दिखाती हूँ. लाइक वी कैन लाइक एक मैंने बनाया इंडेक्स डॉट html करके एक फाइल. ठीक है, सॉरी, html. ओके, यार व्हाट यू से. अब मैं यहाँ पे एक लेती हूँ p टैग विच इज योर ब्लॉक लेवल. ओके, ये क्या इंडिकेट करेगा आपको? ब्लॉक लेवल, ब्लॉक एलिमेंट का एग्जांपल. ओके, तो यहाँ पे पैरा टैग में मैंने क्या दिया है, लेट्स सपोज हेलो html. नाउ यही सेम चीज मैं देती हूँ स्पैन टैग में. स्पैन टैग नहीं, एक और p टैग लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे भी मैंने सेम चीज क्या किया, हेलो html. ओके, एंड नाउ स्पैन टैग लिया मैंने. यहाँ पे भी मैंने अगेन क्या लिखा, हेलो html. नाउ कंट्रोल D. सो नाउ वी कैन सी हाउ दे आर लुक. ओके, ये दिख रहा है हेलो html, हेलो html. जब मैंने p टैग में लिखा तो ये नेक्स्ट लाइन, जब मैंने p टैग में लिया तो ये फर्स्ट लाइन में आया, देन ये सेकंड लाइन में आया. बट व्हेन आई टेक द स्पैन टैग, तो जो ये हेलो html है ये इसके नीचे ना आके इसके जस्ट बाजू में है. तो दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, उतना ही विड्थ ले रहा है जितना इसका कंटेंट है. बट p टैग क्या ले रहा है, फुल विड्थ ले रहा है. अब इसको और अच्छे से समझना है तो यहाँ पे हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं. लेट्स स्टाइल. ठीक है, यहाँ पे दिया मैंने bg कलर पिंक, लेट्स सपोज. एंड देन यहाँ पे मैंने लिया स्टाइल bg कलर मैंने ले लिया, लेट्स सपोज रेड. नाउ यू गाइस कैन सी ये पूरा विड्थ ले रहा है. बट ये कितना ले रहा है विड्थ, सिर्फ इतना ही ले रहा है जितना इसका टेक्स्ट है. अगर मैंने टेक्स्ट बढ़ाया तो उसका विड्थ भी बढ़ेगा. बट ये जो मेरा p टैग है ये पूरा जो वेब पेज का विड्थ है वो पूरा कवर कर रहा है. दैट्स व्हाई ये क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट. और ये क्या है, इनलाइन एलिमेंट. ओके, दैट्स व्हाई दे बोथ आर डिफरेंट. नाउ अब यहाँ पे इसकी एक और प्रॉपर्टी देखते हैं. इसको हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं. लेट्स सपोज देते हैं हाइट एंड विड्थ. हाइट मैंने दिया 200 पिक्सल. मैं विड्थ दे रही हूँ, विड्थ 200 पिक्सल. नाउ यहाँ पे भी मैं क्या देती हूँ, सेम चीज. लेट्स सपोज सेम चीज कॉपी करते हैं, ऐसे भी हमें समझ में नहीं. कॉपी किया मैंने. नाउ रिफ्रेश द पेज. कैन यू लुक द डिफरेंस. जो मैंने इसे दिया हाइट एंड विड्थ, इसने वो लिया हाइट एंड विड्थ. बट हियर यहाँ पे मेरा हाइट एंड विड्थ काम नहीं किया, बिकॉज इनलाइन जो एलिमेंट होते हैं वी कैन नॉट गिव द हाइट एंड विड्थ. बट जो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है उसे वी कैन गिव द हाइट एंड विड्थ. ओके, द मेन डिफरेंस. दैट्स इट. एंड नाउ वी विल जंप ऑन आवर next question. Inline and block level. Now formatting text. What is formatting text in HTML? Formatting text, that you can see the effects of text on your web page. Basically b tag which already b tag मतलब वो bold कर देता है text को. strong tag का भी वही मतलब होता है, वो strong कर देता है, like उसे काफी highlight कर देता है. I is nothing but for your italic. EM for is also for italic. Mark is for also, like when you use the mark, so it will highlight that text particular. U is nothing but underline. स्मॉल क्या करेगा, वो आपके टेक्स्ट को स्मॉल कर देगा. डेल क्या कर देगा, वो आपके टेक्स्ट के ऊपर बेसिकली एक्सटेंड. और सुपर क्या करता है, ये सुपर क्या करता है, जो भी जैसे कि आपने 2 दिया, 2 का स्क्वायर, तो ये सुपर ऐड कर देगा ऊपर. सब मतलब क्या करता है, जो नीचे ऐड करता है. जस्ट लाइक यू कैन टेक अ केमिकल फॉर्मूलाज लाइक H2O. नाउ 11th क्वेश्चन इज व्हाट आर सिमेंटिक टैग. सिमेंटिक टैग्स क्लियरली डिस्क्राइब देयर मीनिंग. इस लाइन से ही आप समझ सकते हो जो सिमेंटिक टैग्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब देयर मीनिंग क्लियरली. लाइक हेडर टैग आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो हेड का एक पार्ट है. नेवबार, लाइक नेवबार के आप एलिमेंट्स बना रहे हो. मेन मतलब जो मेन कंटेंट है हीरो पेज का और जो भी मेन है वेबसाइट का, एक्सेप्ट द हेडर एंड फुटर. नाउ सेक्शन, एक पर्टिकुलर सेक्शन में आपने यूज किया आर्टिकल फुटर लाइक दैट. व्हाट इज द पिक्चर टैग यूज्ड टू फॉर रिस्पॉन्सिव स्पेशल कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन. जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनके रिप्रेजेंटेशन होते हैं. ये क्या करता है, बेसिकली एंगुलर ओपनिंग एंगुलर टैग, क्लोजिंग एंगुलर टैग, कॉपी, ये सभी जितने भी होते हैं ये क्या करते हैं, एंटिटीज को शो करते हैं. Likewise, if you want to see, I can show you. Like here, I put in HTML. Okay, sorry, HTML बना दिया यहाँ पे. अब यहाँ पे आप देख सकते हो, रिफ्रेश करके पेज देखो, यहाँ पे कॉपी का एक सिग्नल आ गया. तो वो एंटिटी क्या होता है, एंटिटी के लिए एक आप लोगों को ऐसे की एलिमेंट्स ऐसे बनाते रहते थे. सो दैट्स लाइक दिस इज. And after the types of list in HTML, basically list के 3 types होते हैं in JavaScript, sorry in HTML. Order list, unorder list and description list. Basically जो order list जो आपको list चाहिए, if you want then I can show you also. Like if I use the order list,
और इसके अंदर मैंने लिया कुछ 4 एलिमेंट्स after that, so it will show you in a particular manner sequence. So it will create in a sequence as you see. Now if unordered list like वो आपको कोई sequential option नहीं देगा, वो just paste कर देगा in a bullet form like this. Comment all those. So clearly you can see. ये क्या कर देगा, बुलेट फॉर्म में कर देगा. ओके, एज यूजुअल डिस्क्रिप्टिव का भी यही होता है, जो कि डिस्क्रिप्शन दिखाता है. फॉर्म एलिमेंट्स क्या होता है, जो कि आप एचटीएमएल में फॉर्म्स बनाते हो उसमें क्या 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 यूज होता है. फॉर्म, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट, ऑप्शन, बटन, लेबल. जो भी आप फॉर्म बनाते हो उसके अंदर फॉर्म टैग होता है. आप जो भी यूजर से उसका नेम ले रहे हो, पासवर्ड ले रहे हो, ईमेल ले रहे हो, व्हाटएवर इट विल योर इनपुट. ओके, टेक्स्ट एरिया यहाँ पे जहाँ पे आप कमेंट्स के लिए यूज करते हो. सेलेक्ट के लिए कोई भी जेंडर सेलेक्ट करना, ऑप्शंस के लिए. दीज आर द फॉर्म एलिमेंट्स बेसिकली. टाइप्स ऑफ इनपुट फील्ड. इनपुट फील्ड की क्या टाइप होते हैं, टाइप के अंदर आप क्या देते हो, टेक्स्ट देते हो, पासवर्ड देते हो, ईमेल देते हो, नंबर देते हो, रेडियो देते हो, चेक फॉर. दीज आर द फील्ड्स. फॉर्म वैलिडेशंस के एट्रीब्यूट क्या होते हैं, रिक्वायर्ड, पैटर्न, मिन लेंथ, मैक्स लेंथ, रीड ओनली एंड डिसेबल्ड. दीज आर द एट्रीब्यूट्स जो टैग्स के अंदर जो एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं. व्हाट इज एन आई फ्रेम. आई फ्रेम एम्बेड अनदर वेब पेज इनसाइड द करंट पेज. आई फ्रेम क्या करता है, एक अलग जो दूसरी वेबसाइट होती है उसको एक दूसरे वेबसाइट में क्या करता है, ऐड करता है. क्या करता है, अनदर वेब पेज इनसाइड द करंट पेज. हाउ टू इंसर्ट मीडिया. अब कोई भी मीडिया इंसर्ट करने के लिए आप क्या यूज करोगे, ऑडियो के लिए ऑडियो टैग यूज करोगे, वीडियो के लिए वीडियो टैग यूज करोगे, which is nothing but your HTML5 parts, new elements, tags. How to add Google Map. Google Map कैसे ऐड करोगे किसी. यूज द iframe embedded option from a Google Map. बेसिकली अगर आपको ऐड करना है गूगल मैप तो यहाँ पे क्या करोगे, गूगल मैप पे जाओगे, गूगल मैप. ठीक है, आप यहाँ पे गूगल मैप पे गए. मैंने पर्टिकुलर कोई एरिया सेलेक्ट किया लाइक कांदी वाली ईस्ट मुंबई. ठीक है, नाउ शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करने का. नाउ हियर यू कैन सी द एम्बेडेड मैप. यहाँ से आप आई फ्रेम क्या करोगे, यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी किया आपने. अब इसे आपने लेट्स सपोज यहाँ पे ऐड कर दिया. सो नाउ यू कैन सी इन योर वेब पेज also. See, now you can accordingly give your height width to this map. So you can easily add the Google Maps, a particular address or particular place का जो भी एड्रेस गूगल मैप ऐड करना चाहते हो तो किसी भी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हो. ओके, आफ्टर दैट क्या डिफरेंस बिटवीन एंकर टैग एंड लिंक टैग. एंकर टैग क्या करता है, इट इज क्लिकेबल होता है, नेविगेशन इनसाइड अ बॉडी. बेसिकली आपको एंकर टैग कैसा दिखता है मैं बता देती हूँ. जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया एंकर टैग, जहाँ पे मैं किसी भी वेबसाइट का लिंक दूँ तो मुझे ये इस पर रिडायरेक्ट करेगा. ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सेल ड्रॉ website. Now on your web page you can see target blank देते. If you guys know why we give the target blank क्यों देते, ताकि वो न्यू टैब में ओपन हो बेसिकली. ठीक है, सो ये जो लिंक दिख रहा है ये क्या करेगा, दूसरे वेब पेज पे मुझे यहाँ पे लेकर आएगा. तो दिस इज योर क्या हो गया, ये एंकर टैग. बट व्हाट इज लिंक. लिंक इज नथिंग बट जो भी आप कोई अदर वेबसाइट्स को अदर फाइल को लिंक करना है आपके HTML फाइल में तो आप यूज करते हैं लिंक टैग. यहाँ से आप उसके href में क्या कर दोगे, उस फाइल का नेम यहाँ पे मेंशन कर दोगे, पाथ. सो दिस इज नथिंग बट योर लिंक टैग. ओके, डिफरेंस बिट. नाउ HTML ओल्ड वर्सेस न्यू. तो HTML ओल्ड मतलब HTML4 में क्या था, नो सेमेंटिक टैग्स बट हियर इज सेमेंटिक टैग. फ्लैश बेस्ड मीडिया, ऑडियो वीडियो, लेस SEO फ्रेंडली बट दिस इज द SEO ऑप्टिमाइज्ड. नाउ आपका यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है, CSS इंटरव्यू क्वेश्चंस. यहाँ पे हमने क्या खत्म कर लिया, HTML के जितने भी बेसिक्स और मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन इन इंटरव्यू वी कवर अप. ओके, नाउ CSS इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर. व्हाट इज CSS रूल सेट. CSS रूल सेट क्या होता है, सेलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू. CSS का रूल सेट क्या होता है, कोई भी आपने पर्टिकुलर लाइक मेरा ये क्या है HTML फाइल. ओके, नाउ मैं एक और फाइल बनाती हूँ जहाँ पे मैं बनाऊंगी style.css. ओके, नाम प्रॉपर है. अब मैंने क्या किया, HTML में आके मैं इसे क्या करती हूँ, कमेंट आउट. Now I have a body tag. So मैंने यहाँ पे दिया div tag. पर्टिकुलर div tag में देने के बाद यहाँ पे मैं p tag देती हूँ. यहाँ पे मैंने लिया Lauren Epsom. Okay, now I give the ID. अब मैंने इसे ID क्या दिया, let's suppose पैरा दिया. ओके, now ये जो मेरी फाइल है इसे मुझे पहले लिंक करना पड़ेगा style.css. ओके, अब मैं यहाँ पे यूज करूंगी हैश पैरा. नाउ यहाँ पे दिया मैंने bg which is nothing but your background color. Let's suppose I'll take the H1. Okay, now you can see the जो भी मेरा पैरा टैग के अंदर था उसका बैकग्राउंड क्या हो गया,
एक्वा कलर हो गया। सो दिस फॉर्मेट इज योर रूल सेट, बिकॉज यहाँ पे आपने क्या किया, जो भी आईडी हो, क्लास हो या फिर एलिमेंट हो, जिससे भी आपने उसे सेलेक्ट किया है स्टाइलिंग के लिए, दिस इज नथिंग बट योर सेलेक्टर, और ये आपका क्या हो जाता है, प्रॉपर्टी, बिकॉज बैकग्राउंड कलर इज योर प्रॉपर्टी एंड दिस इज योर वैल्यू विच इज बेसिकली शोज ऑन योर वेबसाइट। अब टेक्स्ट के पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है वो एक्वा दिख रहा है, तो ये क्या है आपका, नथिंग बट वैल्यू। ओके, लेट्स सपोज आई टेक द एक्वा। ओके, नाउ नाउ यू कैन सी द जो भी मेरा पैराटैग के अंदर था उसका बैकग्राउंड क्या हो गया, एक्वा कलर हो गया। सो दिस फॉर्मेट इज योर रूल सेट, बिकॉज यहाँ पे आपने क्या किया, जो भी आईडी हो, क्लास हो या फिर एलिमेंट हो, जिससे भी आपने उसे सेलेक्ट किया है स्टाइलिंग के लिए, दिस इज नथिंग बट योर सेलेक्टर, और ये आपका क्या हो जाता है, प्रॉपर्टी, बिकॉज बैकग्राउंड कलर इज योर प्रॉपर्टी एंड दिस इज योर वैल्यू विच इज बेसिकली शोज ऑन योर वेबसाइट। अब टेक्स्ट के पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है वो एक्वा दिख रहा है, तो ये क्या है आपका, नथिंग बट वैल्यू। ओके, तो यहाँ तक आप समझिए। आफ्टर दैट, ways to add CSS, CSS को कैसे ऐड कर सकते हैं, इनलाइन ऐड कर सकते हैं, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS क्या होता है, लाइक अगर आप, जैसे कि मैंने पहले किया था, पहले ऐड किया था स्टाइल करके, तो दिस इज नथिंग बट द इनलाइन CSS। बट अगर मुझे ऐसे ऐड करना है तो मैं क्या करूंगी, ऊपर बॉडी में ही एक स्टाइल टैग बना लूंगी, सॉरी, स्टाइल टैग बना के यहाँ पे उसे जो भी रहेगा मैं अपने प्रॉपर्टीज दे दूंगी, तो दिस इज योर इंटरनल CSS। बट जो मैं ये वाला ऑप्शन कर रही हूँ, किसी एक फाइल को लेके, इस फाइल में लिंक के थ्रू ऐड किया है मैंने, एंड देन मैं इसे स्टाइलिंग दे रही हूँ यूजिंग द सेलेक्टर, so this is your external CSS. Okay, so ways of add CSS is nothing but first one is inline CSS, external CSS and internal CSS. So types of CSS selector, elements के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लास के थ्रू, जैसे कि मैंने अभी आईडी के थ्रू किया, उसी तरह हम लोग क्लास के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एलिमेंट्स के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सली भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और एट्रीब्यूट्स के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और सूडो क्लास के थ्रू भी। सो नाउ, हाउ टू ऐड गूगल फॉन्ट एंड आइकन्स। गूगल फॉन्ट और आइकन्स को कैसे ऐड करोगे, किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, उसका ये लिंक क्या करोगे, किसी भी, जैसे कि आपको गूगल फॉन्ट का चेक करना है, तो वहां से जाके आपने क्या किया, लिंक कॉपी किया, एंड देन जैसे कि ये लिंक आपको गूगल फॉन्ट क्या मिलेगी, तो इसे कॉपी करो जस्ट, और HTML के हेड टैग में क्या कर दो, पेस्ट कर दो, एंड यू कैन यूज इट नॉर्मली जैसा भी आप यूज करना चाहते हो। नाउ व्हाट इज सीडीएन, सीडीएन इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये क्या करता है, कंटेंट्स को डिलीवरी करता है, बेसिकली लोड्स रिसोर्सेज फ्रॉम द नियरेस्ट सर्वर फॉर फास्टर परफॉर्मेंस। दैट्स इट। रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट पोजीशन, रिलेटिव क्या करता है, पोजीशन रिलेटिव टू इटसेल्फ, वो जो भी क्या करता है, वो अपने खुद के अकॉर्डिंग, लाइक खुद के एलिमेंट के अकॉर्डिंग खुद को क्या करता है, प्लेस करता है एंड शिफ्ट करता है, जो भी उसकी स्टाइलिंग। एब्सोल्यूट क्या करता है, पोजीशन रिलेटिव टू नियरेस्ट पोजीशन रिलेटिव, जो भी स्टाइलिंग होती है, किसी टेक्स्ट को मैंने दिया पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट दिया मतलब वो अपने पैरेंट के अकॉर्डिंग ही शिफ्ट होगा, लाइक मैंने बोला पोजीशन एब्सोल्यूट देने के बाद मैंने लिखा राइट, राइट 20 पिक्सल और लेफ्ट लेफ्ट नन, मतलब लेफ्ट 0, तो वो अपने राइट से अपने पैरेंट के अकॉर्डिंग शिफ्ट होगा। ओके, दीज आर द डिफरेंस। नाउ पोजीशन प्रॉपर्टीज, स्टैटिक होता है, रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट होता है, फिक्स। स्टैटिक मतलब वो क्या होता है, जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा, वेबसाइट आप कितना भी स्क्रॉल करो, लाइक अ नैव बार, स्टिकी नैव बार। और रिलेटिव क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, एब्सोल्यूट भी मैंने बताया, फिक्स्ड इज लाइक अ स्टैटिक टाइप, फिक्स्ड क्या रहता है, वो आपका नैव बार फिक्स्ड रहेगा, स्टिकी वो भी स्टिक रहेगा। लेआउट प्रॉपर्टीज क्या होता है, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, फ्लोट, पोजीशन। फ्लैग बॉक्स क्या होता है, जो भी आपके कंटेंट होते हैं उन्हें फ्लेक्स से हॉरिजॉन्टली अलाइन करता है। ग्रिड इज नथिंग बट योर लाइक डैशबोर्ड स्ट्रक्चर यू कैन गिव, दिस इज रोज एंड कॉलम। तो फ्लोट क्या करता है, वो आपके एलिमेंट को फ्लोट करेगा राइट या लेफ्ट में। पोजीशन भी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं पोजीशन के। नाउ जस्टिफाई कंटेंट वर्सेस अलाइन। जस्टिफाई कंटेंट मेन एक्सिस, क्रॉस एक्सिस, क्रॉस एक्सिस मतलब मेन एक्सिस, नथिंग, ये क्या करता है, जस्टिफाई एक्सिस, ये जो कंटेंट है ये आपका एक्स एक्स यू कैन से एक्स एक्सिस से मिडल में करता है और सेंटर में करता है। इफ यू राइट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो आपका जो भी टेक्स्ट रहेगा वो हॉरिजॉन्टली मतलब एक्स एक्सिस में क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा इन बिटवीन। ना अलाइन आइटम क्या करता है, वो क्या करेगा, आपका वाई एक्सिस से करेगा। ओके, दिस इज डिफरेंस। सो ये भी पूछा जाता है काफी टाइम, फ्लेक्स वर्सेस ग्रिड। फ्लेक्स क्या होता है, वन डायरेक्शनल होता है, ग्रिड क्या होता है, टू डायरेक्शनल। ये रो और कॉलम होता है, ये रोज एंड कॉलम में होता है ना। व्हाट इज की फ्रेम, की फ्रेम इज डिफाइंड एनिमेशन स्टेप्स, लाइक ये एनिमेशन का स्टेप्स डिफाइन करता है। लाइक मैंने क्या किया, की फ्रेम स्लाइड किया फ्रॉम लेफ्ट 0 टू लेफ्ट 100, जो भी होगा वो लेफ्ट से क्या होगा, 0 होगा, लेफ्ट से 100 होगा, फ्रॉम 0 टू मतलब वो लेफ्ट से 0 से लेके 100 तक वो की फ्रेम और एनिमेशन चलेगा। नाउ एनिमेशन प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, एनिमेशन नेम होता है, ड्यूरेशन होता है, टाइमिंग फंक्शन होते हैं, डिले होते हैं, इटरेशन काउंट्स और डायरेक्शंस। नाउ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल और स्किप। लाइक आप कोई भी दिया है आपने, जैसे कि एलिमेंट, उसको आपको ट्रांसलेट करना, रोटेट करना है, स्केल उसका करना है, स्किप करना है। सो दीज आर द ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज। सो media query, what is media, used for responsive design, basically we use the media query in css for the responsive designs। media query क्या करता है, media query आपने ऐड किया मैक्स विड्थ, मतलब जब मैक्स विड्थ 780 पिक्सल हो गए तो बॉडी का बैकग्राउंड रेड हो जाना चाहिए, दैट्स इट। Basically, media queries, why we use the media queries in CSS to design or to make a responsive website. Ways to make a website responsive: media query, flexbox, CSS grid, relative units responsive. These are the main factors to make a website responsive. Like media query के through भी आप क्या करते हो,
वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हो, फ्लेक्स बॉक्स के भी थ्रू बनाते हो, एससीएसएस ग्रिड के। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। ओके, हाउ टू सेंटर अ div, किसी भी div को सेंटर करने के लिए क्या करोगे? दीज आर द मोस्ट यूज्ड प्रॉपर्टीज इन सीएसएस। लाइक आपको ये हर वेबसाइट में यूज आएगा, काम आएगा। लाइक कि आप कहाँ से कैसे भी किसी भी वेबसाइट में ये तीनों प्रॉपर्टीज मोस्टली बहुत यूज की जाती है। अगर किसी भी आपको पैरेंट को div को सेंटर में करना है, लाइक पहले तो आप दोगे डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। पहले डिस्प्ले फ्लेक्स दोगे, कुछ नहीं होगा, टैग डॉट टैग। तो किसी भी div को आपने क्या दिया, लाइक इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग पैरेंट। इसका मैंने एग्जांपल लिया, लाइक इसे भी हम कमेंट कर देते हैं, इन लोगों को भी कमेंट कर देते हैं। अभी आपने यहाँ पे एक div दिया, ओके, जिसे मैंने दिया है क्लास पैरेंट, ठीक है। इसे मैंने दिया एक इंटर टैग, दिस इज नथिंग बट योर लॉगिन, ओके। स्टाइल भी करते हैं, स्टाइल क्या करते हैं? बीजी इंक हाइट 2 पिक्सल, 200 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल। नाउ अब मैं इसे क्या दूंगी? प्रॉपर्टी ये भी दूंगी जो था डिस्प्ले फ्लेक्स। अच्छा, पहले मैं आपको इसको दिखाती हूँ बेसिकली दिख कैसा है। ये ऐसे दिख रहा है। अब मैं मुझे लॉगिन को क्या करना है? इधर सेंटर में लाना है, सॉरी, इधर सेंटर में। ये जो लॉगिन है ना मेरा, ये लॉगिन, तो लॉगिन को मुझे इधर सेंटर में लाना है। तो मैं पहले क्या दूंगी? डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं लिखूंगी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ना वो क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस के इन एक्स एक्सिस को क्या हो जाएगा? बिटवीन में, मतलब हॉरिजॉन्टली वो क्या हो जाएगा? सेंटर में, हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया ना। और मुझे क्या करना है? इस टेक्स्ट को बीच में करना है, तो क्या करूंगी? अलाइन आइटम सेंटर। अब वो क्या हो जाएगा? बीच में, मिडिल में हो जाएगा। नाउ रिफ्रेश द पेज, सी। सो किसी भी आपको एलिमेंट को इन बिटवीन करना है, तो उसके पैरेंट टैग, मतलब मुझे क्या लॉगिन के इसके पैरेंट टैग को आपको क्या प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी? डिस्प्ले, जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन सेंटर, ओके। So this is the last but not the least question. So that's it. Thank you guys for watching my video. Again, in next video we will come with the JavaScript interview questions. So if you like my efforts, so you can like and subscribe my video. Thank you so much.